قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک علم کو بندوں سے کھینچ کر نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، جن سے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کا فتویٰ دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 238 میں ہے، حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تذکرے پر فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اچھے لوگ اٹھتے جاتے ہیں، جو جاتا ہے اپنا نائب نہیں چھوڑتا۔ امام بخاری نے انتقال فرمایا تو 90,000 شاگرد محدثین کی شکل میں چھوڑے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا تو 1,000 شاگرد مجتہدین کی شکل میں چھوڑے۔ محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے اور مجتہد ہونا آخری منزل، اور اب 1000 مرتے ہیں اور ایک بھی نائب نہیں چھوڑتے۔ حضرت سیدنا بدر الدین عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک اتخذ الناس رؤوسا جہالا کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، جو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے فیصلے کریں گے اور اپنی جہالت کے مطابق فتوے دیں گے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا قول ہم نے اپنے زمانے میں پایا ہے۔ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز اپنے زمانے میں علماء کی کثرت کے باوجود ایسا فرما رہے ہیں تو ہمارے زمانے کا کیا حال ہوگا۔ اب آپ سوچئے، آج سے 800 سال پہلے جب یہ حالت تھی تو اب ہمارے دور میں کیا کیفیت ہوگی۔ یہ وہ دور ہے کہ بہت احتیاط اور حاضر دماغی کے ساتھ اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آ رہا ہے، ہر ایرے غیرے جو نہ کبھی مدرسہ دیکھے اور جنہیں نہ قرآن و حدیث کا علم ہے اور نہ کبھی وہ علماء کی صحبت حاصل کیے، آج وہ اسٹیج پر ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ جب تیرے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد میں نے 3-4 دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تو کافروں نے کیسا کیسا کہا تھا، تو میں نے تجھ سے کہا تھا بلا سوفا یوتی کا ربک فترضی، کیا بات ہے، تجھے اتنا دوں گا تو خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ، مکہ میں تو دیا تو نے لیکن پٹوایا بھی تو تھا مکہ میں۔ جملہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں پٹوایا جیسا شبد کا پریوگ کرنا ایک مسلمان کے لیے بالکل اچیت نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تک پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر کیسے اور کس طرح شبد کا پریوگ کرنا چاہیے۔ وہ اسٹیج پر آج تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کی تلاوت کریں اور پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرما رہے تھے تو کبھی کبھی صحابہ کرام درمیان میں عرض کیا کرتے، راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راعینا کہنا منع کر دیا گیا اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس لفظ کے 2 معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ اب ایسے مولانا کے بارے میں کیا کہا جائے، آپ خود سوچیں۔ ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے۔ دعا کرتے، خدا کی قسم اتنا کہو گے، ایک ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، جانتے ہو جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ابے عرش کیوں ہل رہے ہو؟ عرش جواب دیتا ہے مولا نہیں دیکھ رہے ہو؟ زمین پہ ایک ماں
आई है। अल्लाह फरमाएगा अर्श कब तक हिलते रहोगे? आवाज आएगी मौला जब तक माँ की सुन नहीं लेता है तब तक हिलता रहूंगा। आवाज आएगी अबे अर्श हिलना बंद कर दे, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ की दुआएं पहले कबूल फरमा लिया है। जिस इलाके में यह शख्स होगा उसकी बड़ी धूम होगी। आजकल स्टेज पर ऐसे ही लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अफसोस तो तब होता है कि मिंबर रसूल से ऐसे लोगों की गिरफ्त करने के बजाय नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। आम हालात और बोलचाल में भी अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत रखता है। अगर कोई बोले मामू के घर गया था तो सुनने में अच्छा लगेगा, और अगर कोई वही बोले कि बाप के साला के घर गया था तो फिर सुनने में बुरा लगेगा। और ज़ाते किबरिया की बात तो बहुत निराली है, उसका कलाम भी बेमिसाल है, फिर उसकी शायान शान में अबे का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अल्लाह पूछता है अबे अर्श क्यों हिल रहे हो? अर्श आएगी अबे अर्श हिलना बंद कर दे। आज सोशल मीडिया का दौर है और लगभग लोगों के पास मोबाइल है, और उनमें से ज़्यादातर लोग यूट्यूब और फेसबुक में आपके प्रोग्राम को लाइव दिखाने की कोशिश करता है या रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर उसे वायरल करता है। ऐसे में मुकर्रिर को बहुत एहतियात और सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। हालिया दिनों एक तकरीर वायरल हुई जिसमें एक मौलाना तकरीर के दौरान हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बयान कर रहे थे। पास में बैठे शख्स ने कहा कि हंज़ला जे से होता है। उस पर मुकर्रिर साहब जो जोशीला अंदाज में तकरीर कर रहे थे उन्हें डिस्टर्ब हो गया। फिर क्या हुआ, पहले इस वीडियो को देखें। हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे? अरे हजरत देखो तकरीर में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज़ था ना वो हंज़ला है जे से, समझे? मेरी बात सुनिए। उसके बाद बहुत से लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने आईडी से शेयर किया और मुकर्रिर साहब का खूब मजाक उड़ाया। जिस जुब्बा व कुबा के साथ वो मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, यकीनन उनकी तकरीर से तरबियत और कम इल्मी झलक रही थी। हैरत की इंतहा हो गई कि जिस शायर ने हंज़ला को जे से बताया, उसी के इस्तकबाल में नकीब साहब खड़े होकर नारा लगवा रहे थे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खुतबाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत गुलफाम हस्तानी नैनीताल उत्तराखंड। हम आपको बता दें कि हंज़ला न जीम से होता है और न जे से होता है, बल्कि लुगत के मुताबिक हंज़ला जो से होता है। अब आप इसी से अंदाज़ा कीजिए कि स्टेज पर कैसे कैसे जाहिल मौलवी रहते हैं। अगर ऐसे ही जाहिलों को बुलाया जाएगा तो गुलिस्तान का अंजाम क्या होगा? सही कहा है किसी ने, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? वर्तमान में इन ड्रामाबाज मौलवियों से मुसलमानों की इस्लाह कम और बदनामी ज़्यादा हो रही है। हिंदुस्तान का एक मुतशद्दिद मुस्लिम मुखालिफ शख्स है जिसका नाम है पुष्पेंद्र। यह शख्स मुसलमानों के खिलाफ हमेशा लोगों को वरगलाने की कोशिश करता है। फेसबुक में इसके 8 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। उसने भी अपने आईडी से इस वीडियो को शेयर किया और उसमें लिखा कि मनोरंजन का मज़ा लीजिए जब दो ज्ञानी एक स्टेज पर बैठे हो। अब आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी इन मौलवियों से कितनी हो रही है।
मुक़र्री साहब की एक और तहक़ीक़ देखते जाइए जिसमें वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि एक यहूदी ने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि आपने तो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया है, लेकिन मैं मुसलमानों के ईमान को ख़रीद कर ले लूँगा। उस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वह कैसे करेगा? तो यहूदी ने जवाब दिया कि मैं उन्हें मोबाइल देकर उनके ईमान को ख़रीद लूँगा। अब आप सोचिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की तारीख़ 1193 ईस्वी है और मोबाइल की ईजाद 3 अप्रैल 1973 में इंजीनियर मार्टिन कॉपर के ज़रिए हुई थी। अब आप सोचिए कि मोबाइल फ़ोन की ईजाद और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात में तकरीबन 800 साल का फ़र्क है और ये मुक़र्री साहब मोबाइल को हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक यहूदी ने कहा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने तो बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया है, लेकिन मैं मुसलमानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा, मुसलमानों के ईमान का सौदा कर लूंगा। तो सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था उस यहूदी से, ए यहूदी जरा तू ये बता तू कैसे खरीद सकता है? तो उस यहूदी ने जवाब दिया था कि मैं मोबाइल देख करके, मोबाइल उसको गिफ्ट करके के उनके जवानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा। खतीब हजरात अब नमक मसाला लगाकर जोशीली और जज्बाती तकरीरों से इज्तिनाब करें। जिस मौजू पर तकरीर करना हो उस मौजू पर किताबों का खूब मुताला करें, जितना मालूम हो उतना ही तकरीरों में बयान करें। नकीब बेजा लफ्ज़ी और चापलूसी से गुरेज करें, बेजा गैर मुनासिब आवाज़ निकालने से परहेज़ करें। आज मुक़र्रिरों की बेतुकी बातों और बेदलील घनघरज तकरीरों से खवास के साथ अवाम भी बेजार हो रही है। शायद यही वजह है कि पहले के लोग उलमाए कराम से मिलना सही समझते थे, लेकिन आज धीरे धीरे उलमाए कराम से दूरी इख्तियार करने में ही आफियत समझते हैं। हमारे जलसों का जो निज़ाम है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जलसों में माइक के लिए लोग इतना रुपया क्यों खर्च करते हैं। जब हमारे मुक़र्रिर, नकीब और शायर खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल लेते हैं तो फिर उन्हें माइक की ज़रूरत ही क्यों है। बेजा चिल्लाना यह अक्लमंदी नहीं है, इससे जलसे का मकसद पामाल होता है और लोगों की निगाहों में इस्लाम एक तशद्दुद बेजा गाली की सूरत में प्रस्तुत हो रहा है। जब आप स्टेज को मिंबर रसूल से ताबीर करते हैं तो कम से कम इस मिंबर का ज़रूर लिहाज किया करें। कहाँ क्या बोलना है, सही अल्फाज का चुनाव करें। अगर मुझको यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में सुन रहे हैं तो शाहीन मीडिया को फॉलो करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।